Yes. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss Section 55 to Section 57 of Criminal Procedure Code, which is a part and parcel of Chapter of Arrest. So in this particular lecture, we will discuss whenever the police arrest any accused person, so what will be the procedure to produce that accused person before the magistrate. As well as we will discuss the question asked by the examiner on these sections and the probable question which may be asked by the examiner on this particular section. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 55 टू सेक्शन 57. इसमें प्रोविजन है कि अगर पुलिस किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने का टाइम क्या है, कितने टाइम में प्रोड्यूस करना चाहिए, ये सब प्रोसीजर हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Arrest Section 54A to Section 57 of Criminal Procedure Code 1973. So Section 54A deals with identification of person arrested. So where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person or persons is considered necessary for the purpose of investigation of such offense. Suppose if any person is arrested by the police officer of committing any offense and his identification is required. बहुत सी बार होता है ऐसा है कि अक्यूज्ड को देखा हुआ तो होता है लेकिन उसका नाम वगैरह पता नहीं होता है. अक्यूज्ड का हुलिया पहचानता है कोई विटनेस या इन्फॉर्मेंट, लेकिन उसका नाम वगैरह पता नहीं होता है. उस सिचुएशन में आइडेंटिफिकेशन के लिए उस इन्फॉर्मेंट को बुलाया जा सकता है अक्यूज्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए. तो यहां पर वो प्रोविजन है. तो यहां पर क्या होगा कि the court having jurisdiction may on the request of the police officer in charge of a police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deems fit. So suppose if the identification of any accused person is required under such a circumstances, the court having jurisdiction in this particular case after a request made by officer in charge of a police station direct the person so arrested to remain present for the purpose of identification in such a manner as courts deems fit. तो जब कभी भी अगर कोई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है कि ये अक्यूज्ड पर्सन को आइडेंटिफिकेशन के लिए अवेलेबल या प्रेजेंट रहने के लिए कहा जाए, कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ आइडेंटिफिकेशन जरूरी है, तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा, डायरेक्शन देगा वो अक्यूज्ड पर्सन को कि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रेजेंट रहना पड़ेगा. अब जैसे भी जिस तरीके से प्रेजेंट रहना पड़ेगा वो कोर्ट ऑर्डर में मेंशन कर सकता है. अभी देखिए कि provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a judicial magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using method that person is comfortable with. Suppose if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, then such particular process of identification shall take under the supervision of a judicial magistrate. क्या होगा कि जो पहचानने वाला है, जो आइडेंटिफाई करने वाला है अक्यूज्ड को, अगर वो मेंटली या फिजिकली चैलेंज है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आइडेंटिफिकेशन का जो सारा प्रोसेस है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा. समझ रहे हो? और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये कंफर्म करेगा खुद को कि जो आइडेंटिफिकेशन चल रहा है, जो वो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में जो मेंटली और फिजिकली जो चैलेंज पर्सन है वो कंफर्टेबल है या नहीं है, ये सब देखेगा कि आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में ही होगा. अभी देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड
द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ। तो यहां पर बोला है कि जो पर्सन है मेंटली और फिजिकली चैलेंज है, जो आइडेंटिफाई करने वाला है, तो उस सिचुएशन में वो पूरा आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को वीडियोग्राफ करना जरूरी है। उसकी वीडियोग्राफी होगी जब वो पहचान रहा है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल हावभाव, फिजिकल गेस्चर से समझ में आता है कि ये पर्सन को उसने पहचाना है, तो इसलिए वीडियोग्राफ होना जरूरी है। अगर पहचानने वाला, आइडेंटिफाई करने वाला मेंटली या फिजिकली चैलेंज है, उस सिचुएशन में आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होगा और उसकी पूरे आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। दैट इज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54A। नाउ सेक्शन 55, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। Section 55. So when any officer in charge of a police station or any police officer making an investigation deputes any officer subordinate him to arrest without a warrant. Suppose if any officer in charge of a police station deputes his subordinate to arrest any accused person without warrant. बहुत सी बार क्या होता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, वो अपने सबऑर्डिनेट को, जो अपने नीचे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसको डिप्यूट करता है कि भाई ये पर्सन ने ऑफेंस किया है और इसको अरेस्ट कर लेकर आओ। अगर ऐसा डिप्यूट करता है तो क्या होगा, ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट एन ऑर्डर इन राइटिंग specifying the persons to be arrested and the offense or that cause for such which the arrest is to be made. तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, he will deliver a written order to his subordinate specifying the reason to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made. तो वो जो पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो एक ऑर्डर बनाएगा, सबऑर्डिनेट को देगा कि ये पर्सन को अरेस्ट करो और ये ग्राउंड्स है उसके अरेस्ट के और ये रीजन है उसके अरेस्ट का, वो मेंशन करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. द ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल बिफोर मेकिंग द अरेस्ट notify to the persons to be arrested the substance of the order and if so required by such person shall show him the order. Suppose if the subordinate police officer arresting the accused person, at the time of arresting the subordinate shall communicate the grounds of arrest to the arrested person and if so required by such person shall show him the order. अब क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट जाएगा, सबऑर्डिनेट जाके उस अक्यूज को अरेस्ट करेगा. अरेस्ट करते वक्त सबऑर्डिनेट की ड्यूटी है कि उसने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करना, उसको बताना कि भाई क्यों अरेस्ट किया जा रहा है. और अगर वो अरेस्टेड पर्सन, वो अक्यूज अगर डिमांड करता है कि मुझे रिटर्न ऑर्डर बताओ, तो वो सबऑर्डिनेट की ड्यूटी रहेगी वो रिटर्न ऑर्डर बताने की. देन सेक्शन 55A, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन. So section 55A deals with health and safety of person. So it shall be the duty of the person having the custody of an accused to take a reasonable care of the health and safety of accused. So this is amended provision, and as per provision section 55A, whenever the accused is in the custody of a police officer, whoever having a custody of police officer, it will be the duty of that person to take care the health of accused person. Now suppose if the accused sent in PCR, accused will remain in the custody of police officer. So while he is in the custody of police officer, it will be the duty of that police officer to take care the health of accused person. समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर पीसीआर ग्रांट करता है कोर्ट, तो अक्यूज रहेगा पुलिस के कस्टडी में. और सेक्शन 55A क्या कहता है कि अक्यूज जिस किसी के भी कस्टडी में है, उसी की ड्यूटी है अक्यूज के सेहत का ख्याल रखना. तो अब इस सिचुएशन पे हम समझ सकते हैं कि पीसीआर में पुलिस टॉर्चर कर सकती है या नहीं कर सकती है. टॉर्चर करना तो बहुत दूर की बात, उसके सेहत का ख्याल रखने की ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर की, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55A. सेक्शन 56, पर्सन अरेस्टेड टू बी taken before magistrate or officer in charge of a police station. So a police officer making an arrest without warrant shall without unnecessary delay send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. So whenever the accused is arrested, it shall be the duty of that particular police officer that without unnecessary delay produce that arrested person before the magistrate having jurisdiction in this particular case. And suppose if any private person has arrested any accused person, then
प्रोड्यूस दैट अक्यूज्ड पर्सन बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। दो तरीके के, प्राइवेट पर्सन अगर अरेस्ट करता है तो विदाउट डिले उसको जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन में ले जाकर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है तो सेक्शन 56 ये कहता है कि विदाउट डिले उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये विदाउट डिले का प्रोविजन है सेक्शन 56 में। नाउ सेक्शन 57, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। Section 57. So no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court. तो जब कभी भी पुलिस किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करने के बाद विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर 167 में अगर कोर्ट ने पीसीआर ग्रांट किया तो वो ज्यादा देर रह सकता है, लेकिन अगर पीसीआर का कोई ऑर्डर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा अक्यूज्ड की कस्टडी पुलिस स्टेशन में कितनी हो सकती है, 24 आवर्स। विद इन 24 आवर अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा ही, दैट इज द ड्यूटी। अगर नहीं किया तो पूरा जो डिटेंशन है वो इलीगल डिटेंशन हो जाएगा और उसके लिए पुलिस लायबल हो सकती है। अब देखिए कि 24 आवर्स अरेस्ट से 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र पुलिस ने अगर किसी अक्यूज्ड को केरल में अरेस्ट किया, अब अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करना ये रूल बताता है सेक्शन 57। तो 24 घंटे के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, केरल से आने के लिए यहां पर उतना टाइम लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में ये क्लियर किया गया है कि जो जर्नी का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब केरल से यहां तक लाने का पीरियड एक्सक्लूड, यहां पर जैसा पहुंचे वहां से 24 आवर्स काउंट होंगे और वो 24 आवर्स में अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। In Sharif Bhai versus Abdul Razzaq, that is a case in 1961, Supreme Court held that if a police officer fails to produce an arrested person before a magistrate within 24 hours, he shall be held guilty of wrongful detention. अगर पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं करती है तो वो पुलिस ऑफिसर रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए लायबल रहेंगे, वो उनके लिए चार्ज फ्रेम हो सकते हैं रॉन्गफुल डिटेंशन का। अब इस पर पूछा गया क्वेश्चन है 54A to 57 पे, उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सेक्शन 50A, सेक्शन 53A, सेक्शन 55A, सेक्शन 60A। तो अगर हम देखें तो सेक्शन 53A क्या करता है कि ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट the arrest to a nominated person, नहीं सॉरी 53A प्रोविजन है, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। सेक्शन 53A में क्या प्रोविजन है कि मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप। सेक्शन 53 या 55A जो है कंसेप्ट वो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, health and safety of arrested person, and section 60A है arrest to be made strictly according to the code। तो यहां पर अगर हम देखें section 55A is a correct answer, health and safety of arrested person is section 50A। now section 55A of CRPC relating to health and safety of accused person has been inserted by which amendment? कौन से अमेंडमेंट के जरिए ये इंसर्ट किया गया है सेक्शन 55A? तो यहां पर हम देखेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2008 की जो अमेंडमेंट हुई उसके जरिए सेक्शन 55A इंसर्ट किया गया है। अनदर प्रोबेबल क्वेश्चन, इफ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन आइडेंटिफाइंग द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 54A of CRPC, such process of identification shall take place under the supervision of सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब कभी भी मेंटली और फिजिकली पर्सन अगर आइडेंटिफाई कर रहा है उसको अक्यूज्ड को, तो ऑल द प्रोसेसेस शैल बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। द वर्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैज बीन यूज्ड। तो मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन अगर आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो प्रोसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सुपरविजन में होना जरूरी है। सो ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट ऑफ अक्यूज्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स इज अ फंडामेंटल राइट, सिविल राइट, स्टैट्यूटरी राइट, ह्यूमन राइट।
तो अगर हम देखें सेक्शन जो है आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो दैट इज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 में भी प्रोविजन बताया हुआ है, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। So correct answer is a fundamental right. So this is a particular provision which we have discussed in this particular lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.